Good morning. Good morning, sir. Very good. You are from which state? I'm from Bihar. Very good. Who is the Chief Minister of Bihar? Honorable Nitish Kumar is our Chief Minister. Who is the Governor of Bihar now? Honorable Falku Chauhan is Governor of Bihar. What is the name of the RRB that is functioning in Bihar? Rural Gramin Bank, Which bank has sponsored it? PNB. Punjab National Bank. Where is its headquarters? PNB headquarters is पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर्स किधर होता है? दिल्ली. Delhi. Yes, sir, Delhi. वेरी गुड. आपने कर्नाटका बैंक के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है एंड सो व्हाट डू यू नो अबाउट बैंकिंग? व्हाट इज बैंकिंग? Sir, banking is a business activity, and in the whole process of bank institution, rule and regulation under banking system. ओके. In banking, बैंक का मेन काम क्या है? the main function of bank is take deposit and give loans for customers. Excellent. Uh, Very good. Can you tell me some more functions that are done by banks? Yes, sir. The bank is the banks gives so many facilities to customer, opening of several accounts just like saving, recurring, fixed deposit, RD, and so many other bonds and gold loans, and customers can store their gold in locker system in banks, and loan facilities, most favorable loan facilities were given to the customer, and so many other function of bank. What are the other functions like say locker, Yes, sir. bank guarantee, letter of credit, collection of Yes, bills and checks, yes, sir. then cash management services, real Yes, sir. time gross settlement, Yes, sir. RTGS, then NEFT. internet banking services, Yes, sir. tax collection. These things the banks are doing. Can you tell once again what are the various facilities banks are giving? So the various facilities given by banks are tax, Apart from tax. apart from deposit advances. Yes, sir. Tax collection, issue of a checkbook and draft locker system to avail the loans, and to uh, um, हेलो. yes, sir. लॉकर फैसिलिटी ये सब क्यों नहीं बोला? Yes, sir. बोलो ना. लॉकर फैसिलिटी बोले सिर्फ लॉकर बोले फैसिलिटी लॉकर बोला. आपने नहीं राइट. बोले तो रियल लॉकर. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एनईएफटी. Yes, RTGS, NEFT, SWIFT, other and all facility, digital banking, net banking, सुपर. mobile banking. वेरी गुड. अच्छा बोला. अभी बताइए हमको डिपॉजिट में दो क्लासिफिकेशन है, मेजर क्लासिफिकेशन. वो क्या है? Say time deposit and term deposit, demand deposit and term deposit. डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? So in demand deposit, saving and current account will be under this demand deposit, because any time can order and demand for money, and he can withdraw money. गुड. Uh, व्हाट इज टाइम डिपॉजिट्स? so in time deposit, two accounts were under, that is recurring deposit account and fixed deposit. एक्सेलेंट. एक्सेलेंट. Customer can deposit money for a long term, either short term, and then fix it, and after the period of maturation, they will get the money. So that is time duration is taking, so it's called time. They will get the money along with interest. Yes, sir, amount will interest amount will get also. What is a post dated check?
So post-dated check when I have needed to make a check in future date, but I have to give at that time because I have to give at that time when the check is issued and the same date is on the date, but it is used for in future purpose. Then this check is called post-dated check. No, 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 wrong, wrong, wrong. A post-dated check is a date. Give it example. Today's date is 28, Sir, 21st. we can make it check it today, but on the Listen, checkbook we mention the date of future date. listen. The check is written today, but we are writing date as 22nd Yes, sir. February 23rd. Any date after this today is known as post-dated check. समझ Sir, गया? yes, sir. We make the check at that time, but we mention the date on check is for Future date. next future date, sir. Good. I want What to is say. stale check? So still check when the check is issued and the customer will go after 3 months. The check will called still check because the validity of check will be lost. Example बोलिए. Just अभी when today today I issue a check and that day is 21st February. Then after 3 months, when customer will go to bank, then this check is still check. But within the time period, if we go, then this is not still check. okay. Have you heard about the term RBI? What is RBI? So RBI is the central body of our banking system, and this is the called Banks of Bank. It regulates the banking sector of our India, and RBI has regulated the banking sector, and RBI monitor the banks and issue currencies, and the RBI decides so many rates for the banks for their survival and their guidelines issued by RBI. Good. Can you tell me what is the present repo rate? So 4% repo rate Good. at that time. Can you tell me what is the present reverse repo rate? So 3.35%. Can you tell me what is the present CRR? So CRR is 3%. Right. SLR? So 18%. Can you name 3 or 4 sectors coming under priority sector? So priority sector, there are many sectors under education, agriculture, housing loans, renewable energy, and other sector. Renewable energy, then infrastructure, then Yes, infrastructure. You can. yeah, I told you only 3. I told you only Yes, 4. sir. I told you only Yes, sir. 4. Correct. Yes, sir. Expand BSE. What, B, sir? BSE. BSE, banking No, core no, 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 service. no, 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 no. I am asking B for Bengaluru, S for sugar, E for England. उसको expand कर लो. Banking का Bangalore, terms में, banking and stock market का Bangalore terms में. sugar, हाँ. BSE. Bangalore sugar, Bangalore Sugar England. England. Sir, I don't know Bombay this company. Stock Exchange. Yes. ये भी नहीं जानते हैं. I know it's a Bombay Stock Exchange, but I don't know Bangalore sugar. Okay. Swabhiman. ये scheme is related to which concept in banking? Swabhiman. SWABHIMAN. It Yes, is sir. Swabhiman is a small saving scheme, hmm, and it is regulated by Indian government.
for our peoples of India, This for is especially for weaker section, इसका and कॉन्सेप्ट का unorganized sector to improve and get self dependent, and this is they help in the skill development, इसका कॉन्सेप्ट especially का for नाम क्या है? unorganized. कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ये पर्पस क्या है? ऐसा मत This क्यों is क्या the purpose of Swabhiman is to improve the skill development in our unorganized sector of peoples, especially youth generation in India. It is not for financial inclusion. Yes, sir. It is for financial inclusion. समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. What is the expansion of NPA? Non-performing asset. What is the expansion of HDFC? Housing Development Finance Corporation. Expansion of NABARD. NABARD, National Agriculture Board of National Bank for Agriculture and Allied Rural Development. Development Bank. Rural Development. बस National Bank for Agriculture and Rural Development. Okay. Yes, sir. Yes, Very sir. good. Best wishes. All the best. But आप थोड़ा फिर भी डर रहे हैं. You have been talking to me for 5-6 days, but still you are having fear. You should not have fear. Yes, sir. Best wishes. Today's mark 9 out of 10. Thank you, sir. Best wishes. But you know some questions you did not answer correctly. NABARD and all, why you could not answer correctly? Go to the Yes. expansions, abbreviations. Yes, sir. Thank you. Best wishes. Thank you, sir. Sorry, I will talk to you later on. Free. You don't have to pay money again. I will talk to you sometime afterwards. ठीक है? Okay, thank you, sir. நீங்கள் டயல் செய்த எண் தவறானது. தயவு செய்து டயல் செய்த எண்ணை ओ बेटा जी हेलो गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ज्योति. आपका इंटरव्यू हो गया ना? क्या कल बात किया ना? और ये नया नहीं इंटरव्यू? सर, आपने आज का टाइम दिया था. अच्छा अच्छा. आई गिव यू टुडेज टाइम. एक्सेलेंट. हेलो. हेलो सर. आज का टाइम दिया था ना? यस सर. हाँ जी. आपने आरआरबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. किस तारीख है? 27. 27 फरवरी. गुड. यस सर. अच्छा जी. किधर? लखनऊ आर. अच्छा. गुड गुड गुड. एक्सेलेंट. बताइए आरआरबी का मेन फंक्शंस क्या है? So may I speak in Hindi? या हाँ जी. Yes. पूरा हिंदी. पूरा हिंदी. Okay sir. प्लीज टेल मी आरआरबी का काम फंक्शंस क्या है? आरआरबी का बेसिकली तो यही है कि वो फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है और छोटे छोटे बिजनेस करवाने में मतलब उनकी हेल्प करता है. फाइनेंशियली सपोर्ट ज़्यादा करता है. ओके. आरआरबी आपका जो आरआरबी में आपको इंटरव्यू होने वाला है उसका चेयरमैन का नाम क्या है? BS सांधू सर ऐसे है. आई पढ़ा नहीं पढ़ा? नो सर, सॉरी, नो आइडिया. Which bank has sponsored that RRB? नाबार्ड. No. जो बैंक में आपने आरआरबी इंटरव्यू अटेंड करेंगे उस बैंक को स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक होगा, बैंक ऑफ इंडिया होगा.
हाँ सर, आर्यव्रत का बैंक ऑफ इंडिया है, प्राथमा यूपी ग्रामीण बैंक का पीएनबी है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आपका इंटरव्यू किधर चलता है? किधर चलता है मतलब? ना किस बैंक का अंदर में चलता है? आर्यव्रत बैंक में। उसका स्पॉन्सर कौन है? उसका बैंक ऑफ इंडिया। क्यों नहीं बोला? ओके। तो रेडी होना है ना। यस सर। हाँ, यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश? नो सर, आई एम लिविंग इन हरियाणा। अच्छा, पलवल हरियाणा। यू आर लिविंग इन हरियाणा? यस सर। ओ, बट आपका इंटरव्यू किस बैंक में होगा? आर्यव्रत बैंक में है सर, यूपी आरआरबी? में। आरआरबी इन हरियाणा और उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। Oh, आई अप्लाइड फॉर उत्तर प्रदेश। then you must know that. अच्छा, you are from हरियाणा। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर का नाम? देव आर्य सर, पूरा नाम याद नहीं है, सत्यदेव आर्य है। पूरा नाम याद नहीं बोलने से माइनस मार्क मिलेगा। ओके सर। सही है। ठीक है। हरियाणा का सत्यदेव नारायण आर्या। आर्य, हाँ जी। सत्यदेव नारायण नारायण आर्या। आर्य। उत्तर प्रदेश का गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। How many districts are there in RR, say Uttar Pradesh? 72 सर। 72? अच्छा, गुड गुड गुड। आपका नेटिव डिस्ट्रिक्ट क्या है? पलवल। पलवल हरियाणा। ना ना, अभी योर नेटिव इज हरियाणा। यस सर। ओ, बट यू आर अप्लाइंग इन उत्तर प्रदेश। यस सर। ओ, बिकॉज लैंग्वेज ओनली सेम लैंग्वेज हिंदी, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। आपका नेटिव प्लेस से आने वाला बड़ा आदमी का नाम बताओ। नो आइडिया। नो आइडिया? कोई बड़ा आदमी भी नहीं है, सब छोटा आदमी है। यस सर। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, ये बताओ, सेविंग्स बैंक अकाउंट का बारे में थोड़ा पॉइंट्स बताओ। सेविंग्स अकाउंट। सेविंग अकाउंट जनरली मतलब कि इसको एक बिजनेसमैन भी खोल सकता है और एक नॉर्मल पीपल भी खोल सकता है। बिजनेसमैन प्रेफर तो करंट अकाउंट करता है, लेकिन जैसे हम नॉर्मल हैं, हमको कोई बिजनेस नहीं करना, तो हम सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं। इस पे बैंक को इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है कि अगर हम बैंक को इस पे बैंक कितना इंटरेस्ट देता है? मैक्सिमम 3 to 4%। नहीं नहीं, अभी 2.7%, 2.9%, इतना ही। ओके सर। ओके, ठीक है सर। प्लीज गेट टू नो दैट। ठीक है। आपका पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी एक रिटायर्ड टीचर हैं। टीचर। Yes। टीचिंग प्रोफेशन का बारे में बताओ जी, हाउ गुड इज दैट? टीचिंग प्रोफेशन बेस्ट तो यही है सर कि इसमें पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों मैनेज हो जाती हैं, और हम मतलब कि हम लोग बच्चों को शिक्षित करें। मेन फाउंडेशन तो यही है कि अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे बच्चों को, तो देश का विकास भी उतना अच्छा ही होगा। गुड। व्हाई, व्हाट डिड यू स्टडी? आई अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स में, फिजिक्स? 2019। पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स? यस सर। गुड। आपको ये बताओ, बैंक में कैसे कैसे इनकम आता है? कैसे कैसे इनकम आता है? What are the ways by which banks get income? सर मेन जो इनकम आता है उनका डिपॉजिट से ही होता है। जितना वो डिपॉजिट उनके पास आएगा उस हिसाब से वो लोन देंगे, तो उनको प्रॉफिट वहां से भी होगा। नहीं, गलती है। इनकम कहाँ, डिपॉजिट आने से तो खर्चा ही होगा, दूसरे को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो फिर जितना डिपॉजिट आएगा फिर वो लोन उनको उतना देंगे ना, तो लोन देने में वहाँ पे मैनेज होकर प्रॉफिट हो सकता है। सो ऐसा बोलना है, लोन देने का वजह से इंटरेस्ट आता है। ओके। हाँ, और बोलो। और क्या होता है, जितना हम बेसिकली तो लोन से ही है सर, इतना ही पता है। बेसिकली ठीक है, और भी इंटरेस्ट होता है ना, सर्विस चार्जेस से इंटरेस्ट होता है।
और नॉन फंड बेस्ड गारंटी इशू करने में, लेटर ऑफ क्रेडिट देने में इंटरेस्ट आता, इनकम आता है। और और लॉकर ये टेंडर, ये लोग टेंडर देते हैं उस पे भी इनको कमीशन मिलता है, उसमें भी इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, लॉकर देने से रेंट आता है। और लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन आरआरबी में तो वो नहीं होगा मेरा ख्याल से। आपका आरआरबी में लाइफ इंश्योरेंस करता है नहीं करता देख लीजिए। ओके सर। देन एनईएफटी आरटीजीएस करने से भी पैसा मिलेगा आरआरबी में, समझ गया? ओके सर। आप क्यों आरआरबी ज्वाइन करना चाहते हैं? नंबर वन तो ये है कि हम लोगों की हेल्प कर सके, फाइनेंशियल उनको सपोर्ट कर सके, जहाँ मतलब कि फाइनेंशियली सपोर्ट तो कर सके और लोगों के पास जाके उनको बता सके कि आपके लिए बेनिफिट क्या हो सकता है। गुड। अच्छा जी, आप एक आरआरबी का मैनेजर बन गया, ओके। तब लोग को कैसे हेल्प करेंगे आप? लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? हेल्प करेंगे, हाउ विल यू हेल्प द सिटीजन्स? उनको अपनी पॉलिसीज बता के कि हमारी पॉलिसीज दूसरे बैंकों से बेटर क्यों हैं, और उनको बता के कि उनका अगर वो लोग सेविंग्स करेंगे तो उनको कितना फायदा होगा आगे जाके अपने लिए ही। और अपने इंश्योरेंस, अगर हमारी बैंक हमारा इंश्योरेंस देती है तो उनको इंश्योर करवा के कि ये चीज दूसरों से बेटर क्यों है, आगे लाइफ टाइम में कैसे हेल्प करेगी उन लोगों को। गुड। आपने फिजिक्स पढ़ा है ना? यस सर। फिजिक्स का बारे में कुछ बताओ ना, हमको कुछ भी नहीं जानते हैं फिजिक्स का बारे में। हमको फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स से क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका बारे में बताइए ब्रीफली। हेलो सर, नो आइडिया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? सर, नो आइडिया। नो आइडिया कैसे बोलेगा? कितना, कब 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 एमएससी पढ़ा है? 19 में। 19 में पढ़ने से तो अभी भूल जाएंगे। सर ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है ना, इनमें समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़े, और जो भी आता है ऐसा लगता है कि भूल जाओगे। डोंट वरी, डोंट वरी, जो जानते हैं वो तब उसके लिए बता दे। गुड 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 गुड। अच्छा जी, यू आर फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा में फाइनेंस मिनिस्टर कौन जानते हैं? अनिल विजय शायद। नो, यू डोंट नो? ओके, नो सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये बात बताइए, सिंपल बात बताइए, टाइम डिपॉजिट क्या है, डिमांड डिपॉजिट क्या है? टाइम डिपॉजिट तो ये है कि एफडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ये हमारी टाइम डिपॉजिट है। और डिमांड में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और प्रॉमिसरी नोट्स। नहीं, डिमांड डिपॉजिट में ये है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, बस डिमांड में। सोल प्रोप्राइटर कौन है? किस चीज का सर? सोल प्रोप्राइटर, हु इज ही? नो आइडिया सर। नो आइडिया? गॉड, भगवान भगवान हेल्प करो ये लोग का। सोल प्रोप्राइटर क्या, जो बिजनेस चलाता है उनका नाम है सोल प्रोप्राइटर। ये भी नहीं जानता है तुम? बताओ। आरबीआई सर। नहीं, कोई आदमी दुकान खोलने से तो उनको सोल प्रोप्राइटर बता रहा हूँ। ओके, सॉरी सर, मेन बिजनेसमैन कौन है? हाँ, मेन बिजनेसमैन है सोल प्रोप्राइटर। ये भी नहीं जानता है तुम? क्या है जी? हाँ बताओ। आई एम गेटिंग एंग्री, करेक्ट? अच्छा, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? सॉरी सर। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जब एक बिजनेस को रन करने के लिए एक से ज्यादा आदमी की हेल्प ले, या फिर उसमें जो शेयर डालता है गुड, अपने बिजनेस को वेरी चलाने गुड। लिमिटेड कंपनी में मेन वैरायटीज क्या है? के। लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, ये दो चीज होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड। ओके ओके, सफिशिएंट। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड हो गया। अभी ये बताओ, एपीवाई का एक्सपेंशन क्या है? एपीआई। एपीवाई, एपीआई नो सर, नो आइडिया।
ये भी नहीं जानते हैं? अटल पेंशन योजना। हाँ जी। सर पता तो था सर, पर वो ये तुक्का नहीं मारा। पढ़ा है भूल गया? पढ़ा तो है सर। पढ़ा तो है। See, you're a small girl, but you must remember things. अच्छा जी, अभी ये बताओ, हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक्स चलता है? पब्लिक हरियाणा में कोऑपरेटिव नहीं है? होगा, कोऑपरेटिव हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक भी होगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, हरियाणा में चलने वाला रिवर्स का नाम बताओ। रिवर्स का नाम कौन कौन सा? एक तो वो वहाँ पे सरस्वती थी जो अब खत्म हो चुकी है, घाघरा रिवर पंजाब साइड से आती है। सरस्वती खत्म हो गया? किधर खत्म हो गया? सर बहुत कम है, अब नहीं आती इतना पानी, अच्छा, सूखा रहता है उसमें। उत्तर प्रदेश में क्या क्या रिवर है? उसमें तो मेन यमुना, गंगा हम्म, और यही सब है। मेन तो यमुना ही है, आगरा यमुना। ठीक है। हम इंडिया का थ्रू में क्या क्या ओशन है, सी है, बताओ। इंडिया, सॉरी सर। Throughout India, what are the names of oceans or um, say uh, what are the oceans? बताओ। अरेबियन सी, ये भी नहीं हाँ, जानते? बताओ। अरे इंडियन ओशियन, बे हाँ बे इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल। अच्छा, श्रीलंका का कैपिटल क्या है? जयवर्धनेपुरम कोटे। राइट। What is the who is the chief minister of Karnataka? कर्नाटका को बी एस येडियुरप्पा। वेरी गुड, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। अब अच्छा पढ़ना है जी, यू आर नॉट रिमेम्बरिंग थिंग्स, ओके? ओके सर, तो सर Today's mark for you 8 out of 10. ओके सर, पर Thank सर you. मैं बोलिए। मेरे को अपने पे कमेंट बताओ, जैसे कि मैं क्या क्या प्रिपेयर करूँ। You know it, आपने तो some points you were not able to answer ना, जो जो अपने आंसर नहीं कर पाया वो सबको प्रिपेयर करना है। ओके सर। ये बात सही है, वो क्वेश्चन पूछने का उम्मीद भी नहीं है, फिर भी हम लोग उसके बारे में जानने से तो बढ़िया है, समझ गया? भाई, ओके सर। हम तो इजी पूछना चाहते थे लेकिन टफ हो गया, क्या करेगा? हम ओके एक्चुअली टुडे सबको इजी क्वेश्चन पूछना आइडिया था, फिर भी कभी कभी थोड़ा तकलीफ क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ गया? यस मैम, यस मैम। गॉड ब्लेस यू। करेक्ट, नेक्स्ट। Hello. हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. You are appearing for which interview? Sir, please wait for 5 minutes, sir. I came to Hindi exam, sir. Pardon? You have come for? Sir, I have came for a Hindi exam, sir. I am waiting for your call from 8 o'clock. Oh, acha, you are now writing Hindi exam. Sir, Acha, no, no. Where are you now? Can you take a call now or afterwards? sir, afterwards, sir. ठीक है, कितना बजे का बाद में? Sir, I don't know Hindi, sir. When will you call, sir? Or I should. தமிழா தெலுங்கா? Tamil, sir. Tamil, sir. எப்போ எடுக்க முடியும் இந்த கால்? எப்போ பேச முடியும்? Sir, நீங்க சொல்லுங்க சார். ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் 4 o'clock மேல சார். சரி. சொல்லுங்க சார். நீ எந்த ஊரு? சார் கோயம்புத்தூர் சார். நான் மார்னிங் நீங்க கூப்பிடுவீங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார். அப்புறம் நீ இப்போ ஹிந்தி. நான் வேற ஹிந்தி எக்ஸாம் எத்தனை மணிக்கு? சார் இப்போ 10 o'clock ஸ்டார்ட் ஆகும் சார். ரைட், ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. ஓகே சார்.
Yeah, next one. Hello, I'm Sambasivan here. Are you attending a class tomorrow morning 11 o'clock, or would you like to take a mock now? I leave the choice to you. Very good. That's nice. It helps me. Thank you. आप ईमेल भेज दीजिए. नो आप ईमेल भेज दीजिए. हम आपको लिंक भेज देंगे. गूगल मीट का लिंक भेजेंगे. थैंक यू. Yeah, that's over. I think nobody is available now. Thank you.